सबने एक गलती जितना आप गूगल करते हो अपने लक्षणों को, अगर उतना आप वचन ढूंढते अपने लक्षणों के लिए, तो वो लक्षण भाग जाएंगे आपसे। As much as you Google for your symptoms, if you looked for them in the word, those symptoms would have left you. Because devil is using Google. क्योंकि शैतान गूगल का इस्तेमाल कर रहा है। छोटी फुंसी को भी कैंसर बताएगा। He will tell even a small pimple that it's cancer. And if you are so simple, you'll like, I think ये है। No. That's why, church, I'm telling you. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चर्च। This word. ये जो वचन है। Hear this. Okay, sit down. I want to tell you something. एक चीज जो हम सबको डेवलप करनी है, मुझको, आपको, हम सबको, वो है tenacity against devil. One thing that we need to develop against the devil is tenacity against him. Sometimes we are too soft. कई बार हम बहुत कोमलता से बोलते हैं। One time the Lord told me, He said, "Son, I have no problem with your yes." एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा मुझे तेरी हाँ से कोई दिक्कत नहीं। I tell you something and you do it. Your yes is strong. मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, तुम कर देते हो, तुम्हारी हाँ मजबूत है। But your no is weak. लेकिन तुम्हारी ना कमजोर है। Our no should be as strong as our yes. हमारी ना उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी हमारी हाँ मजबूत। When a symptom come, जब एक लक्षण आए, say no, Satan. बोलो नहीं शैतान। I am not allowing this symptom in my body in Jesus' name. मैं इस लक्षण को अपने शरीर में जगह नहीं दूंगा यीशु के नाम में। If you allow the symptom to linger, devil only has one agenda: to steal, to kill and to destroy. क्योंकि अगर आपने उस लक्षण को बने रहने के लिए समय दे दिया, तो शैतान की एक ही योजना है, चोरी करना, हत्या करना, नाश करना। So many cases we hear of people, बुखार आया, केवल बुखार था, पास्टर जी हम डॉक्टर के पास गए, पता चला कैंसर है। वो बुखार नॉक था, वो उस बुखार को अगर उसी समय भगा देते तो आगे कुछ नहीं बनता। जब शैतान आए लक्षण के साथ, खड़े हो जाओ अपने अधिकार में और उसको बोलो, नहीं शैतान, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे छूने का। When the devil comes against you with a symptom, stand against him right there and right then and say, no devil, you have no authority to touch me in Jesus name. चाहे आपको पूरे दिन में कुछ घंटे अलग करने पड़े, even if you have to separate some hours in your day, उसको करो, do it. मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। I will worship the Lord. मैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ? What am I telling you? ये जो वचन है ना, This ये एक word रिलीजियस किताब नहीं है। is not a religious book. ओके, क्योंकि बिना, अच्छा, लेट्स गो टू फर्स्ट Peter 5:8. I want to show you something. पहला पत्रस 5। First Peter 5:8. Are we learning something, church? कुछ सीख रहे हैं? First Peter 5:8. पहला पत्रस 5:8। Be sober, be vigilant. सचेत रहो और जागते रहो। Vigilant कौन होता है? जो बॉर्डर पे सैनिक होता है ना, वो vigilant होता है। A soldier who's at the border, he has to be vigilant. Bible tells us, the New Testament Bible tells us to be sober. अगर परमेश्वर, अगर हम नहीं दे सकते जगह शैतान को, तो फिर बाइबल को नहीं बोलने की जरूरत थी कि सोबर और विजिलेंट रहो। If we could not give any place to the devil, the Bible had no need to say. The Bible tells us in New Covenant, do not give place to Satan. That means we can give him place in our life, in our mind, to afflict us, our flesh. बाइबल हमसे कहती है कि शैतान को जगह मत दो अपने जीवन पे, शरीर में। इसका मतलब हम जगह दे सकते हैं अपने दिमाग में, अपने जीवन में, अपने शरीर में। Amen. Be sober, be vigilant, because your adversary, क्या? Your adversary. सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, not just God's adversary. सिर्फ परमेश्वर का विरोधी नहीं है वो। He is not just God's enemy. वो केवल परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। He's your enemy. वो आपका भी दुश्मन है। He studies you. वो आपको पढ़ता है। He just have one. He will not have mercy on you. और वो दया नहीं दिखाएगा आप पे। He has no mercy. उसमें दया नहीं है। He just wants to kill you. वो मारना चाहता है आपको। Satan doesn't show mercy to
few months kids. शैतान कुछ महीने के बच्चों पे ध्यान नहीं दिखाता. He is a twisted fellow. वो एक भ्रष्ट प्राणी है. You cannot be soft and deal with him. आप नम्र होकर, सॉफ्ट होकर नहीं डील कर सकते उसके साथ. You have to use authority. अधिकार इस्तेमाल करना होगा आपको. You have to use authority. अधिकार का इस्तेमाल करना होगा आपको. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, Seeking whom he may devour. इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. वो खोज रहा है. He is looking. हाँ, in the book of Job, he tells God, मैं ऐसे ही ऐਵੇਂ ही घूम रहा था, आवारा है वो, मैं घूम रहा था आगे पीछे. अय्यूब की पुस्तक में he says I was just roaming around here and there. अभी भी यही करता है. He still does the same thing. क्या बोलते हैं पंजाबी में? गेड़ी मारता है. हाँ, गेड़ी. वो गेड़ी मारता रहता है ऐसे. He just keeps roaming around. हाँ, तो वो जा रहा है. हाँ, चला गया रजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, सुभाष नगर, छतरपुर. वो देख रहा है घरों के बाहर जा रहा है. अब एक घर के बाहर आवाज आ रही है, अरे परमेश्वर क्या किया तूने? मिल गया आज का मेरा शिकार. And outside your house he can hear you grumbling. He says I found my. फिर एक घर के पास गया, वहां हो जा रही है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वगैरह. भैया ये And he goes to another house and there he's hearing praises for God. He said no, not here. he is seeking whom he may devour. वो ढूंढ रहा है किसको फाड़. इसका मतलब he cannot devour anyone that he wants. इसका मतलब अपनी मन मर्जी से नहीं फाड़ खा सकता किसी को वो. कुछ लोग, कुछ विश्वासी सोचते हैं शैतान इतना बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, प्रभु शैतान कर रहा है. Some believers think the devil is so big, what can we do? He is doing everything. बाइबल ने क्या कहा? जब तुम उसका, बाइबल ने ये नहीं कहा परमेश्वर उसका सामना करे. क्या बाइबल ने कहा परमेश्वर उसका सामना? Did the Bible say God will resist him? परमेश्वर सामना करता और भागता तो एक बात थी. प्रभु ने कहा जब तुम भी सामना करोगे तो भी दुम दबा के भागेगा. If God resisted and the devil fled, that would have been a normal thing. But he says when you will resist him, the devil will still run. यानी अगर आप उसका सामना नहीं करोगे तो नहीं भागेगा. If you will not resist him, he will not run away. एक आंटी जब हम प्रभु में नए नए आए थे तो हमें वचन सिखाया करती थी और हम बहुत कुछ सीखे उनसे. और वो अपने 70s में थी उस समय और एकदम हेल्थ में भरपूर थी. और अगर कोई भी सिम्टम आता था ना तो हमें कहती थी, मैं शैतान को बोलती थी खड़ा हो मेरे आगे, खड़ा हो. तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे में ये लक्षण डालने की? तेरी औकात नहीं है मेरे शरीर को छूने की. The auntie who taught us the word when we were growing up, she was in her 70s and full of life, and she shared how if a symptom comes into her body, she will tell the devil stand here, and she will rebuke him and tell him you have no authority to give me this symptom. Amen. Devil cannot put any sickness on you that you do not accept in Jesus name. शैतान आपको कोई भी बीमारी नहीं दे सकता जो आप ग्रहण नहीं करना चाहते हो. कोई आपके पास गिफ्ट लाए, क्या नहीं गिफ्ट, क्या मैं लेना ही नहीं. If someone brings a gift for you, say I don't want it. अरे लो No, चाहिए. take it. No, I don't want it. क्रेडिट कार्ड देते हैं जबरदस्त, ले लेते हो क्रेडिट Credit कार्ड. card. अरे सर बहुत अच्छा, अबे नहीं चाहिए Oh, भाई. it's a credit very good card. credit card. Take it. अरे ले लो बहुत अच्छा है. Oh, नहीं take it, चाहिए. take it. No, I don't want it. वो बेचने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं लेते. They are selling तो you मत don't लो want जो it. बीमारी वो दे रहा है, बोलो लेनी नहीं है. So don't यीशु take- के नाम में नहीं लेनी. Don't take the sickness the devil is trying to give. Say I don't want it in Jesus' name. देखो हर जगह वायरल चल रहा है, थोड़ा सा फीवर ले लो. Oh, everybody has viral. You also take a little bit viral. सबको हो रहा है, तुम भी ले. भाई Everybody's नहीं taking चाहिए, it also. नहीं No, लेना. I don't want it. I don't want it. थोड़ा सा खसरा ले लो. अच्छा थोड़ा, सबको बीपी हो रहा है, तुम भी ले लो. थोड़ा Everybody सा has BP. You also take a little bit. हाँ, सोसाइटी में थोड़ा वैसे भी तो ना, सबके पास है, तुम्हारे पास भी है. Yeah, it should be like everybody in the society has it. बोलो You also have. शैतान अपने Tell him. घृणित हाथ हटा और भाग मेरे जीवन से. Tell him, devil, take your filthy hands off of my life and run away from here. You are people of authority. आप अधिकार पाए हुए लोग हो. Amen. Hallelujah. याद रखना क्या बाइबल ने कहा था, रेजिस्ट द डेविल से पहले क्या था? God gives abundance of grace, more grace. Hear this. More grace empowers you to resist the devil. But you will resist the devil. और ज्यादा अनुग्रह आपकी मदद करता है शैतान का सामना करने में, लेकिन आपको सामना करना होता Hear है. this. Grace will not do it for you. Grace will do it through you.
अनुग्रह आपके लिए नहीं करेगा, आपके द्वारा करेगा. एक परमेश्वर के दास हैं, उनकी बेटी के शरीर में 42 फोड़े थे, सर से लेकर पांव तक. A man of God, his daughter had 42 boils on her body from head to toe. और वो गर्दन के ऊपर से ड्रेस पहनती थी बिल्कुल नीचे तक. वो अमेरिका में थे क्यों, और यहाँ पे पूरे बाजुओं तक, क्योंकि कॉलेज में बच्चे, स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते थे. And she would cover her entire body from her neck all the way to the long sleeves and everything. और उससे पस और खून लगातार. कैन यू इमेजिन 42 फोड़े सर से लेकर पांव तक. And those boils would bleed, pus would come out. और एक दिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, एंड ही वाज कॉट अप टू हेवन. One day he was worshipping the Lord, और वो स्वर्ग में और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन में बैठे हैं, और प्रभु उससे कह रहे हैं, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा. And he sees the Lord Jesus on the throne, and Jesus says, till when will you suffer those boils on your daughter's body? Till when will you allow them? उन्होंने कहा, प्रभु मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ इनसे कि आप मेरी बेटी को चंगा करो. 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ.